Just 48 hours to go for Uttar Pradesh to begin voting, and in fact across 5 states there are all these netas, the biggest guns out from each political party. Take a look on your screens now. While Prime Minister Narendra Modi addressing a virtual rally for Punjab, Bharatiya Janata Party releasing its manifesto just hours to go for elections in UP. It is Khela Hobe as Mamata Banerjee joins hands with Akhilesh supporting for the Samajwadi Party chief. Congress Mission Uttar Pradesh, Priyanka Gandhi Vadra from Uttar Pradesh to Goa. She's been travelling across different states. Uttarakhand battle also with a high fever pitch, and Mayawati joins in for Punjab. And Arvind Kejriwal, remember, ensuring that whether it is Goa, whether it is Uttar Pradesh or even the migrant crisis, the Suno Yogi versus Suno Kejriwal face-off is escalating. So, of course, it is Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in this pitch war battle with Arvind Kejriwal, the Delhi Chief Minister, who's also the Aam Aadmi Party's national convener. Now, what precisely happened was, remember, after the Prime Minister Narendra Modi addressed the parliament, Yogi Adityanath and Arvind Kejriwal got into a Twitter spat. Yogi Adityanath lambasted Arvind Kejriwal for calling PM's statement an outright lie. He called Kejriwal a liar, accusing him of allegedly abandoning the migrants at the Delhi-Uttar Pradesh border. He said Kejriwal forced workers of Uttar Pradesh to leave Delhi when entire humanity was groaning due to the pain of coronavirus. Arvind Kejriwal, almost at midnight, decided to respond to this, slamming Yogi Adityanath, and said, while dead bodies were floating in the river, Yogi Adityanath government was busy giving ads on its false applause in the Time magazine. He called Yogi Adityanath a heartless and a cruel ruler. Meanwhile, the Congress party has targeted both the governments of Delhi and Uttar Pradesh, calling them unsympathetic toward people of this country, specifically the poor who suffered during the COVID pandemic lockdown. The matter has snowballed after specifically Prime Minister Modi in Lok Sabha called out Aam Aadmi Party specifically for its management of COVID-19 pandemic in Delhi. दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ, और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। और उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। प्रधानमंत्री जिन्होंने उस महामारी के दौरान बंगाल का चुनाव प्रचार और अपनी पार्टी की जीतने को प्राथमिकता दी, ये बोलेंगे। और आदित्यनाथ जी क्या बोलेंगे? उनके तो सारे घोटाले मैंने खोले। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। ऐसे संवेदनहीन लोग जो क्रूरता और निर्ममता से शासन चलाते हैं, वो एक संवेदनशील, एक बेहतरीन सरकार को सिर्फ अपनी राजनीति के लिए आलोचना करेंगे और उसका जवाब नहीं दिया जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कोरोना होते हुए ठीक जब हुए, डॉक्टरों ने मना किया कि आप जनता के बीच में मत जाइए, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन यही योगी आदित्यनाथ जी थे, निकले, एक दिन में 5-5 जिलों को जा करके दौरा किया और उत्तर प्रदेश के जनता को बचाने का काम किया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर कोई झूठा और यू टर्न लेने वाला मुख्यमंत्री की अगर उपाधि दी जाए तो केजरीवाल को दी जाएगी। And first reaction has come from Aam Aadmi Party's national convener Arvind Kejriwal. He spoke to my colleague Preeti Chaudhary. Listen in to this exclusive interview. कल प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में साफ साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने आपकी सरकार जो दिल्ली की है, जो माइग्रेंट्स थे कोविड के टाइम पे, उनको विवश कर दिया कि वो पलायन करें दिल्ली से और कोरोना बाकी राज्यों में फैलाएं। बहुत गंभीर आरोप है। उसके बाद योगी जी ने कुछ ट्वीट किए थे, उसकी बात करेंगे, पहले प्रधानमंत्री जी का जवाब तो जरूर दीजिए। मेरा अपना मानना है कि हमारे
मैं जिस पद पे हूं, प्रधानमंत्री जी जिस पद पे हैं, योगी जी जिस पद पे हैं, हम लोगों को आपस में गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को आपस में तू मैं नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को आपस में आरोप प्रत्यारोप नहीं करने चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो जनता में क्या मैसेज जाता है? जनता ने हम लोगों को इसलिए नहीं चुना कि हम आपस में लड़ें, आपस में गाली गलौज करें। जनता ने हम लोगों को इसलिए चुना है कि हम सारे मिलके लोगों का विकास करें। कल योगी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने मुझ पे कुछ आरोप लगाए थे जो सरासर बेबुनियाद थे। उन्होंने आरोप लगाए, मैंने उसका तुरंत जवाब दे दिया ट्विटर पे ही। मेरे लिए मामला यहीं खत्म हो गया। मेरे को गाली नहीं देनी आती, मेरे को तू मैं नहीं करनी आती। मैं वापस अपने काम पे आ गया। अब इस पे मुझे और कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी। मेरे को राजनीति नहीं करनी आती, ये मेरी कमजोरी है। मेरे को तू मैं नहीं करनी आती। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, बिजली अच्छी करनी आती है, पानी अच्छा करना आता है। मैं वो सब करने को तैयार हूं। अगर इस देश में कहीं स्कूल बनवाने हो, केजरीवाल को बुला लो। कहीं अस्पताल बनवाने हो, केजरीवाल को बुला लो। बिजली ठीक करनी हो, केजरीवाल को बुला लो। राजनीति उनको मुबारक। अरविंद जी, तालियां तो बज रही हैं, पर दो सवाल तो जरूर करूंगी क्योंकि ये आरोप हैं। जो दिल्ली के लोग हैं जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनके सीएम हैं, उनको क्योंकि जो विजुअल्स थे उस टाइम पर लोग भूले नहीं हैं, जो इतनी लंबी लंबी कतारें थी आनंद विहार टर्मिनल पर, लोग जा रहे थे, पैदल पैदल लोग निकल रहे थे। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, दिल्ली ने देखा है। तो उस हिसाब से जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी की गाड़ियां लाउड स्पीकर बांधकर माइग्रेंट कॉलोनीज में जा रही थी और उनको बोल रही थी कि यहां से निकलिए, पता नहीं क्या ऐसी बीमारी आने वाली है, ये हुआ था? नहीं, बिल्कुल गलत है, झूठ बोल रहे थे वो। मैंने ट्वीट में यही लिखा है कि संसद में प्रधानमंत्री जी ने सरासर झूठ बोला है, ये शोभा नहीं देता। उसके बाद आपने जिक्र किया योगी आदित्यनाथ जी का। एक बात आपने अभी उठाई है जो सबको थोड़ी अलग लगी, क्योंकि जो भाषा का इस्तेमाल हुआ, उन्होंने जैसी भाषा इस्तेमाल की, भाई देखो इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। तो ये आपका क्या कहते हैं ना, एकदम से गुस्सा आता है और आपने ट्वीट किया, तो जब सुनो केजरीवाल हुआ तो आपने सुनो योगी किया। बस जो मेरे को कहना था मैंने ट्विटर में कह दिया। अब मेरे लिए इतना ही था, बस इतना, ये खत्म। अब आप काम पे आते हैं, काम करते हैं।